guys, welcome to 1 Hour Trading again. Today in this video I'm gonna discuss how we can shortlist or select some stocks in which we can do intraday trade the next day. Okay, so there are different kinds of traders trading in different styles. Some trade based on technical analysis, trading important zones, important areas or levels. Some trade breakouts, trend lines, uh, or range breakouts, and some trade based on price action and will trade the same stocks every day like I do. Okay, so there is not a single way in which we can shortlist the stocks for the day. So I'm gonna discuss different ways that I have knowledge of, and basically there are two or three ways. So before starting, let's establish a set of rules. And these rules will help us to create a watch list, and we will select stocks every day. You will have to do your homework and go through all these stocks in your watch list and then select the stocks for the next day. There are these two basic rules that you should always keep in mind, that any instrument or any stock always follows the bigger time frame trend. What does it mean? It means a stock which is in uptrend or in a rally mode on daily time frame will have more odds of going up on the 5-minute time frame. So when you do intraday trade in a stock which is already in uptrend, which is already in a rally mode, you should not look to short that stock intraday even if you see it falling. All right, the odds will always be in favor of the stock going up. It can reverse from anywhere, any support. In uptrend, supports will always work, resistance will always fail. All right, so you should look for only buying opportunities when a stock is in uptrend or is in a rally mode. Okay, so obviously, right, because if it has to go up on daily time frame, it will be going up on 5-minute time frame as well. And if you are shorting that stock, uh, you don't know when will it be taking a U-turn and it will hit your stop loss. It is as simple as that. Okay, you have to take the higher probability trades. A stock which is in uptrend will have higher probability of going up. So you should only look for buying opportunities in that stock. Trading is all about taking higher probability trades, not low probability trades or low risk to reward probability, right? So, and the second rule is you cannot trade in every stock. Every stock is not meant for intraday. So why I'm saying this is because there are thousands of stocks, and according to me, as per my experience, we should not go on and look new stocks to trade every day. We'll get ourselves confused, and we don't know how a stock behaves, how how the stock price behaves on shorter time frames, right? Some stocks are very liquid, they do not follow price action, they do not follow technical analysis, and like they are going anywhere. So you cannot trade in stocks that you can't even find a pattern to trade in. And also, if you find that pattern, it will not work most of the time. Okay, so while creating a watch list, there are some important points that you should keep in mind. You should always look for stocks that are not very volatile. Not very volatile means they should not do up and down, up and down, up and down very frequently. They should follow the trend very smoothly. The flow should be smooth. Alright, if it is going up, so like two candles green, then one red, then again two candles green, one red, not like one green, one red, one green, green, one red, red. Matlab, this flow should be smooth, right? I will give examples for all these points, don't worry. Should be high beta. What is high beta? High beta means if the market is rising 1%, that stock will move 3% or 2% or maybe 5%. If the market is falling 1%, then also these stocks will fall 2%, 3%, 4%. So this is high beta.
they will always move more than the market. So why we need to choose high beta stocks? Because to capture a good move in intraday, we need stocks that give good moves, right? A 500 rupees stock stuck in a range of 3 to 4 rupees all day, what I'm gonna get in that stock, right? 1 or 2 rupees max. It will hit my stop loss before giving me target, and I'm not going to trade. I'm not getting into a trade to get just 2 rupees. So we need stocks that on daily basis give good moves, big moves, like big swings, like a 500 rupees stock giving a move of 8 to 10 rupees, right? So there's something to get. All right. And the third point is the stock should be liquid, like it should trade with good volumes, like Tata Motors or Bank of Baroda. These are highly liquid stocks, and some illiquid stocks are like Bosch or Eicher Motors. These are stocks which do not generate good volumes on daily basis. So these are most of the time just standing at a price, moves whenever they want, like, and when they move they give very volatile and huge moves. So you never know when the move is coming. All right. Okay, now let's look why it is important to uh, okay, so now let's look why it is important to have stocks that are liquid, and this process and the flow is smooth, right? This is Adani. This is a chart of Adani Green, and आप यहाँ देख सकते हो ये पूरे दिन दोपहर से लेके पूरी दोपहर ये एक ही रेंज में खड़ा रहा। इस स्टॉक को देखकर आपको क्या मिलेगा? क्या आप इस स्टॉक को ट्रेड कर सकते हो? आपको इस किसी भी कैंडल पे आपको लग सकता है कि ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, आपने लिया और ये पूरे टाइम यहाँ पे खड़ा हुआ। दिस इज अ वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी, वेस्ट ऑफ टाइम टू लुक एट दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स। ठीक है, नाउ लुक एट दिस कैंडल। इस कैंडल पे आपको लगेगा कि बस जैसे यहाँ पे ये कैंडल यहाँ पे होगी ना, आपको लगेगा अरे यार ये तो बहुत तेज भागने वाला है, मेरे हाथ से छूट रहा है। यू विल बाय दिस, एंड द सेम कैंडल after a minute will come down again and close around that same price. So this is what I was talking about. This is a very illiquid stock plus very volatile stock. कोई भी मूव कहीं भी कभी भी दे देगा। ठीक है, in intraday this is it is in a downtrend, but suddenly giving up move, then again coming down, closing at the same price around the previous range. So इस तरह के स्टॉक्स हमेशा आपको लॉस देंगे। हमें हमें करना ही नहीं है, हमें देखना ही नहीं है इस तरह के स्टॉक। हमें अपना टाइम वेस्ट ही नहीं करना है। कहाँ जा रहा है इसका प्राइस, कहाँ मूव कर रहा है, इस पूरी रेंज में फंसा हुआ है। वी कैन नॉट ट्रेड सच स्टॉक्स। सी, वी नीड टू ट्रेड स्टॉक्स that are very liquid, the process is smooth। ठीक है, like टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स एक ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा है, प्राइस एक्शन फॉलो करता है, कोई पैटर्न बनाता है तो वो पैटर्न काम करता है। क्यों? क्योंकि उसका जो फ्लो है वो बहुत स्मूथ है, उसके अंदर बहुत बड़े बड़े लोगों का पैसा लगा हुआ है, तो वो एब्रप्टली कहीं भी मूव नहीं कर सकता। इट कैन नॉट मूव इन अपोजिट डायरेक्शन ऑल ऑफ अ सडन। ठीक है, तो यू हैव अ हायर चांस ऑफ winning in such kind of stocks which are moving in a single direction after a pattern has been formed। ठीक है, ये एक पैटर्न है जिसको मैं पहले शायद डिस्कस कर चुका हूँ कि पूरे दिन एक ही रेंज के अंदर रहा, बाद में जाके उसका हाई काटा, उसके बाद सी, कैन यू सी दिस फ्लो? यहाँ पे बड़े बड़े लोगों का पैसा लगा है। इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, वो ऐसे ही नहीं दिया, किसी ने इसके अंदर बहुत बड़ा पैसा लगाया क्योंकि इसकी वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा है। इफ़ यू वांट टू सी, लेट्स सी द वॉल्यूम्स। 64.98 मिलियन इसकी वॉल्यूम्स है, और अडानी ग्रीन में जस्ट वाज 310K। ठीक है, एक स्टॉक जिसकी 1 मिलियन से भी कम है और एक स्टॉक जिसकी 50 मिलियन से भी ज़्यादा है। आप कौन सा चूज करना चाहोगे? आप किस में करोगे?
जिस स्टॉक के अंदर 60 मिलियन की वॉल्यूम डेली बेसिस पे जनरेट हो रही है, आप उस स्टॉक को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, आप उस स्टॉक को कहीं भी अपनी मर्जी से यू टर्न नहीं करवा सकते हो। तो इसलिए हमें इस तरह के स्टॉक्स में ट्रेड करना होता है, ठीक है। सो और प्लस दिस इज नॉट वॉलेटाइल, दिस इज हाई बीटा। टाटा मोटर इज अ हाई बीटा स्टॉक। मार्केट मूव्स 1%, इट विल मूव मोर देन 2%, ठीक है। पूरे दिन में मूव्स देगा, डेली मूव नहीं देगा, कभी कभी ये भी रेंज में खड़ा होगा, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपको इस तरह के मूव्स देगा। कितने सिंपल सिंपल ट्रेड्स आप इसके अंदर पकड़ सकते हो। टाटा मोटर्स, ट्रेंड लाइन टूटी, गो लॉन्ग, ऑल दिस मूव इज योर्स। हाई टूटा, हाई ब्रेक हुआ, दिस मूव इज योर्स। यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ रही है, ये आज का ही ट्रेड है, मैंने ट्रेड किया नहीं आज, बट जस्ट टू टेल यू, सिंपल सी ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन टूटी। कैन यू सी द फ्लो, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, वो भी इतने स्मूथ फ्लो के साथ। आप यू कैन easily capture these kind of moves, right? So we need to always look at the stocks which are good, which cannot be manipulated, which have good volumes, good strength, follows price action. All right, now let me show you my watch list. So my watch list for intraday is just this. I always trade in these stocks only. ये स्टॉक्स वो हैं जिनको मैं डेली बेसिस पे चेक करता हूँ, डेली बेसिस पे, बिकॉज आई ट्रेड ऑन प्राइस एक्शन, आई डोंट ट्रेड ऑन पैटर्न्स। कोई ट्रेंड लाइन भी मूव हो रही है, अगर मेरे को उसका प्राइस बिहेवियर, प्राइस एक्शन सही नहीं लग रहा है, मैं उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लूंगा, ठीक है। मैं ट्रेड लेता हूँ बेस्ड ऑन प्राइस लोकेशन, कि किस लोकेशन पर है, पिछले 2 दिन का कैसा उसका एक्शन रहा है, और आज उसका किस तरह एकदम से सडन जो मॉर्निंग की ओपनिंग है वो किस तरह है, वो क्या हमें शो कर रहा है, मैं उस चीज़ पे ट्रेड करता हूँ। तो इसलिए मैं सिर्फ इन्हीं स्टॉक्स में ट्रेड करता हूँ, एंड दीज आर ऑल हाई बीटा स्टॉक्स, निफ्टी 50 स्टॉक्स मोस्टली, या ऑल ऑफ देम आर निफ्टी 50 स्टॉक्स। इसके अलावा एक दो स्टॉक मैं अपनी लिस्ट में ऐड और सब्ट्रैक्ट करता रहता हूँ, मतलब कोई स्टॉक जो अच्छा ट्रेंडिंग में होगा, लाइक आई एडेड ग्लेनमार्क अ फ्यू डेज अगो बिकॉज ग्लेनमार्क वॉज ट्रेंडिंग, right? Glenmark was trending, it gave a range breakout, and range breakout trades में लेता हूँ। जब तक इस तरह का ट्रेड था, I'm not gonna trade such stocks which are stuck in a range, but जब इसने ब्रेकआउट दिया, now I know कि आप ट्रेंड में, इस दिन मैंने ट्रेड लिया, इस दिन मैंने ट्रेड लिया, यहाँ बीच में कहीं ट्रेड लेकर स्टॉप लॉस दिया होगा, नो डाउट स्टॉप लॉस दिया होगा। ग्लेनमार्क मेरा 1-2 दिन लॉस भी गया था, इस दिन मैंने ट्रेड लिया था, इस दिन मैंने ट्रेंड लाइन थी, मैंने इंस्टाग्राम पे भी शो किया था, ठीक है। तो मैं इस तरह अंदर बाहर करता था। मैंने एसआर ट्रांसफिन, इंडसइंड बैंक और भी बहुत स्टॉक्स, कभी अंदर कभी बाहर, बैंक ऑफ बड़ौदा, मदरसन सूमी, इस तरह के स्टॉक्स में बहुत ट्रेड करता हूँ। बट मेरे जो स्टॉक्स हैं जिनको मैं डेली ट्रेड करने के लिए देखता हूँ, डेली उनके अंदर कोई ना कोई प्राइस एक्शन पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करता हूँ, वो है ये स्टॉक्स। इसके अलावा मैं नहीं देखता हूँ 1000 स्टॉक या 500 स्टॉक या 100 स्टॉक्स इवन, ठीक है, मैं नहीं देखता हूँ। और मेरी जो वॉच लिस्ट है फॉर स्विंग ट्रेडिंग इज दिस। आई हैव अराउंड 112 स्टॉक्स जो मैं ट्रेड करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अगेन दीज आर ऑल हाईली लिक्विड स्टॉक्स, ठीक है। कुछ इलिक्विड स्टॉक्स भी होंगे, लेकिन वो सिर्फ मैं देखने के लिए रखता हूँ, उनके अंदर मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। लाइक इसमें इलिक्विड स्टॉक है MRF इज अ इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ स्टॉक, तो मेरी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट है, उसके अंदर मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, ठीक है। और जील है, जील बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक है फॉर स्विंग ट्रेडिंग एज वेल। स्विंग ट्रेडिंग भी आप इसमें कैसे कर सकते हो, जो इतना ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करता है, ठीक है। तो इसको मैं सिर्फ देखने के लिए रखता हूँ कि अगर कोई अच्छा पैटर्न बन भी गया तो सोचा जा सकता है, लेकिन मैं इस तरह के स्टॉक्स में करना पसंद नहीं करता हूँ, ठीक है। ये मेरी एक और स्टॉक वॉच लिस्ट है जो आप देख सकते हो। अगर मेरे को कोई इंट्राडे पैटर्न वगैरह फाइंड भी करना होता है तो मैं इन्हीं स्टॉक्स के अंदर करता हूँ, इनके अलावा मैं किसी और स्टॉक में जाता नहीं हूँ, ठीक है। एक अलग से वॉच लिस्ट है मेरी बैंक्स की, अलग से बैंक्स में देखता हूँ बैंक निफ्टी की मूवमेंट ट्रैक करने के लिए। निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड दोज 10 स्टॉक्स, दोज आर ओनली स्टॉक्स दैट आई लुक एवरी डे, ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर पैटर्न एवरी डे, और उन्हीं में ट्रेड्स लेता हूँ, ठीक है। नाउ keeping these rules in mind, make a watch list of around 100 stocks
And after you have made a watch list, let's now discuss how you can shortlist the stocks for intraday trading next day, or maybe another day. You have to just mark the important levels, right? So the first thing is, let's say you have 30 stocks in your watch list. Now open every stock and mark important levels like support and resistance. And when you have marked these support and resistance, you can trade their breakouts. Okay, so let me give you an example. Shriram Transport. This is chart for Shriram Transport. I have already marked important levels in this stock because I track this stock for my swing trading. Alright, so ये एक important level है, ब्लू लाइन है, एक important level है. यहाँ पे इसने पहले भी इस छोटी सी बहुत ही मतलब एक कोई स्टीप ट्रेंड लाइन नहीं है, एंड दिस इज नॉट अ प्रॉपर ट्रेंड लाइन एज वेल. लेट्स रिमूव दिस. सो एक ये लेवल एक ब्लू लाइन है, इसने पहले भी यहाँ से आके इसका रिजेक्शन मिला, यहाँ रिजेक्शन मिला, यहाँ रिजेक्शन मिला, दोबारा आया, यहाँ रिजेक्शन मिला, आज इसको फिर ऊपर से रिजेक्शन मिला एंड ऑफ द डे. अगर कल, अब आई हैव मार्क दिस इंपॉर्टेंट लेवल ऑन माई चार्ट, अब मैं इसको कल खोल के देखूंगा, अगर मेरे को ये स्टॉक इसके लेवल के ऊपर जाते हुए दिखता है तो आई विल ट्रेड इन दैट स्टॉक, राइट. आई विल गो टू द 5 मिनट टाइम फ्रेम, और जैसे ही 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ये इस लाइन को ब्रेक करके 5-10 मिनट सस्टेन करेगा, देन आई विल लुक टू गो एंड बाय दिस स्टॉक फॉर इंट्राडे. ठीक है. और मे बी इस तरह के स्टॉक्स, क्योंकि एक हाई बीटा स्टॉक है, जब भी ये ब्रेकआउट्स देते हैं तो बहुत ही बड़ा मूव देते हैं, तो इसमें हमें टारगेट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं. आज भी अगर आप देखें तो इट इज अराउंड it is it has moved around 5%. It was some at some point of time it was up 6% in the day but closed at 4.5%. ठीक है. तो इस तरह के स्टॉक्स हमें देखने होते हैं. और स्टॉक्स आज ये गुजरात गैस मैंने इंस्टाग्राम पे इसका चार्ट शेयर किया था. 1 सेकेंड. गुजरात गैस पे हमने ये ट्रेंड लाइन मार्क करके रखी थी. जब भी ये ट्रेंड लाइन टूटेगी वी विल टेक अ ट्रेड. ठीक है. ऐसा नहीं कि हमें ट्रेंड लाइन इसको मतलब जबरदस्ती डेली ट्रेड करना है, नहीं. आपने मार्क करके रखा है ना, जब भी आपको लगे कि ये ट्रेंड लाइन टूटी है, ठीक है, लाइक आज ये ट्रेंड लाइन टूटी और आपने इसको देख लिया कि हमें कल इसके अंदर ट्रेड लेना है, अगले दिन कोई ट्रेड नहीं मिला, नो प्रॉब्लम, पर हमें पता चल गया ना इसने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया है, ऑलरेडी ट्रेंड लाइन तोड़ चुका है, इसके अगले दिन ट्रेड मिला होगा कहीं ना कहीं, इसके अगले दिन कहीं ना कहीं ट्रेड मिला होगा. तो हमें पैटर्न्स फाइंड करना है, जब वो पैटर्न्स का ब्रेकआउट आ जाए तो हमें उनको ट्रेड करना है. तो जो भी आपकी वॉच लिस्ट होगी उसमें से इस तरह आपको हर स्टॉक में इंपॉर्टेंट लेवल्स, इंपॉर्टेंट पैटर्न्स बनाने, इंपॉर्टेंट पैटर्न्स मार्क करने, और जब भी उनका ब्रेकआउट आए आपको उनको ट्रेड करना है. ठीक है. जरूरी नहीं है कि हर स्टॉक में हर रोज कोई ना कोई पैटर्न का ब्रेकआउट आ रहा होगा, जब भी ब्रेकआउट आएगा आपको तब ट्रेड करना है. एक तरीका ये है. Another way of shortlisting a stock for intraday is to find stocks which are in a rally mode, which are giving 2-3% moves on a daily basis in a single direction, right? Like here is an example of that. This is chart of UPL. UPL पिछले कुछ दिन से सिर्फ सुबह खुलते ही ऊपर जा रहा था. ठीक है. So in such stocks you just have to find a pattern, look for buying opportunities, buy that stock and just sit. It will give you a good profit. ठीक है. यूपीएल मैं बहुत ट्रेड करता हूँ. जेएसडब्ल्यू स्टील देखो, जेएसडब्ल्यू स्टील एक ही महीने में 60% चल गया था, 50% चल गया था. हिंडाल्को, हिंडाल्को एक ही महीने में 50%. ठीक है. रैली करता है, सिंगल डायरेक्शन जो स्टॉक्स रैली करते हैं और बड़ी बड़ी रैलीज करते हैं वो स्टॉक हमेशा अच्छे होते हैं, क्योंकि उसमें हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, हमें सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है. अगर वो अप ट्रेंड में रैली कर रहे हैं तो सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी है, डाउन ट्रेंड में रैली कर रहे हैं तो सिर्फ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी. ठीक है. ज़्यादा दिमाग लगाने कुछ है ही नहीं. ट्रेडिंग इज़ वेरी सिंपल बट वी मेक इट कॉम्प्लिकेटेड. ठीक है. ट्रेडिंग इज सिंपल, नॉट ईजी. आई एम नॉट सेइंग इट इज ईजी, बट सिंपल थिंग्स वर्क इन द मार्केट. ठीक है.
और ये सब स्टॉक्स वही हैं जिनकी डेली मैं अपने टेलीग्राम अकाउंट में, टेलीग्राम चैनल पे मैं डेली बताता हूँ कि ये स्टॉक देखो, वो स्टॉक देखो, ये ऊपर जा रहा है। ये वही स्टॉक्स हैं। मैं करता ही ट्रेड सिर्फ इन स्टॉक्स में, 2-4 स्टॉक्स और एक्स्ट्रा आते होंगे यहाँ वहाँ से, जो मे बी सेक्टर स्पेसिफिक। मान लो फार्मा सेक्टर चल रहा है इस हफ्ते, फार्मा सेक्टर फ्लेवर में है, तो फार्मा सेक्टर का एक आध स्टॉक मैं अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लूंगा। ठीक है। तो आपको कुछ स्टॉक्स तो फिर ऐसे चुनने जो ट्रेंडिंग में है, जिन जो सेक्टर ट्रेंडिंग है, या जो बहुत ही रैली मोड में है। क्यों? क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में रैली देंगे और उसमें प्रॉफिट कमाना हमारे लिए इजी होगा, और वो एक फ्लो में स्मूथली ऊपर जाएंगे। राइट। लाइकवाइज अडानी पोर्ट, सिंगल डायरेक्शन रैली। ठीक है। ओएनजीसी पीछे काफी ट्रेंडिंग था, उसके बाद भी मूव्स देता है तो बहुत बड़े बड़े ऐसे स्विंग्स देता है। तो हमें यही कैप्चर करने हैं। ठीक है। The third way of creating a watch list of stocks is that you select some 10 to 15 stocks that you will trade every day, like I do. मेरे पास फिक्स्ड सेट ऑफ स्टॉक्स हैं जो ये आपके सामने है यहाँ पे साइड में। ठीक है। इसके अलावा निफ्टी, बैंक निफ्टी, एक आध स्टॉक और मैं एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर लेता हूँ अगर कोई सेक्टर फ्लेवर में है। जैसे पीछे मेटल सेक्टर बहुत फ्लेवर में था और फार्मा सेक्टर बहुत फ्लेवर में था। उससे पहले आईटी स्टॉक्स बहुत फ्लेवर में थे। तो इस तरह एक दो स्टॉक्स सेक्टर स्पेसिफिक, और बाकी स्टॉक्स वो जिनके अंदर मैं कंफर्टेबल हूँ। ये चीज़ हमें क्यों करनी होती है? क्योंकि जब आप सिर्फ 10 स्टॉक्स को ही डेली वॉच करते हो, डेली उन्हीं को ट्रेड करते हो, तो दे बिकम योर फैमिली। आपको समझ आने लगता है कि वो स्टॉक कैसे मूव करने वाला है। आपको समझ आने लगता है कि ये स्टॉक कब घूमने वाला है, कब इसके अंदर यू टर्न आने वाला है, और अगर ब्रेकआउट देता है तो ब्रेकआउट किस तरह देता है। ठीक है। सपोज इसने किसी भी सपोर्ट का ब्रेकआउट दिया, तो क्या ब्रेकआउट देने के बाद वो बहुत तेज गिरता है, या ब्रेकआउट देने के बाद वो पहले ब्रेकआउट लेवल को दोबारा रीटेस्ट करके फिर नीचे गिरता है। ठीक है। तो ये सब आप जब एक ही स्टॉक को बार बार देखते हो, तो ये चीजें आपका माइंड उस स्टॉक के लिए ट्रेंड हो जाता है। ठीक है। आपको समझ आने लगता है कि वो स्टॉक बिहेव कैसे करेगा, स्टॉक का प्राइस बिहेव कैसे करेगा। तो आपके लिए इजी हो जाता है उस स्टॉक के अंदर ट्रेड करना। आप देखते ही समझ जाते हो ये स्टॉक क्या करने वाला है। आपको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती, आपको दिमाग लगाना पड़ता है, अरे यार ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। अगर आपको लग रहा है ऊपर जाएगा, कोई पैटर्न बन रहा है, कोई स्पेसिफिक प्राइस बिहेवियर आपको दिख रहा है, आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा ये बिहेवियर इस तरह प्राइस पहले भी मूव किया था। पहले ये स्टॉक उस दिन 3% चला था, 4% चला था, तो आज भी हो सकता है ये 3% या 4% का मूव दे दे। तो इसलिए हमारे लिए इजी हो जाता है। इसलिए मैं सिर्फ इन्हीं 10-12 स्टॉक्स में 10-12 स्टॉक्स में ही ट्रेड करता हूँ। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही डेली ट्रेड करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको आदत हो चुकी है सिर्फ उन्हीं दो स्टॉक्स की, उन्हीं दो इंडेक्स में ट्रेड करने की। उनको पता है कि कितने वॉलेटाइल है, कितना मूव आ सकता है, कितना बड़ा मूव आ सकता है। वो उसका डेटा पढ़ते हैं, उसका ओपन इंटरेस्ट, उसका फ्यूचर एंड ऑप्शंस का डाटा पढ़ के समझ जाते हैं। सिर्फ डाटा पढ़ के समझ जाते हैं कि वो आज मूव ऊपर आने वाला है, नीचे जाने वाला है, कितना आने वाला है, वो सब। इसलिए वो इतने सक्सेसफुल हैं। क्यों? क्योंकि वो डेली नए स्टॉक्स नहीं ढूंढते हैं ट्रेड करने के लिए। वो डेली नए इंस्ट्रूमेंट्स नहीं ढूंढते हैं ट्रेड करने के लिए। उनके पास इतना टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए 100 स्टॉक्स के ऊपर। ठीक है। कई ट्रेडर्स तो ऐसे भी हैं जो पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग भी सिर्फ और सिर्फ 10 स्टॉक्स में करते हैं। सिर्फ यस, आई नो सम ट्रेडर्स जो पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग भी सिर्फ और सिर्फ 10 से 20 स्टॉक्स के अंदर करते हैं। उसके अलावा मतलब 5000 स्टॉक्स आर लिस्टेड ऑन एनएससी, दे डोंट केयर। वो देखते ही नहीं है बाकी के 4980 स्टॉक्स। ठीक है। वो सिर्फ अपने 20 स्टॉक्स की दुनिया है उनकी। उन्होंने दे हैव क्रिएटेड अ वर्ल्ड ऑफ जस्ट दोज 20 स्टॉक्स, एंड दे ट्रेड ओनली ऑन दोज 20 stocks. And an example of such a trader is Mayank Bisain. You can find him on Twitter. He's a good trader. Not good. He's a great trader, and he trades only in
आई गेस 15 स्टॉक्स, ठीक है, एंड ही डज पोजिशनल ट्रेडिंग, बहुत अच्छे ट्रेडिंग करते हैं उनके, आप इंटरव्यूज वगैरह देखो, बहुत सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप इस तरह आप अपना एक स्टाइल चूज करो कि आपको ब्रेकआउट ट्रेड करने हैं या आपको प्राइस एक्शन ट्रेड्स करने हैं या आपको ट्रेंड पकड़ के ट्रेंड को राइड करना है, ठीक है। मैं बेसिकली ट्रेंड को राइड करता हूँ और प्राइस एक्शन को देखता हूँ। ब्रेकआउट ट्रेड्स मैं पोजिशनल ट्रेडिंग में पसंद करता हूँ, नॉट इन इंट्राडे ट्रेड्स, ठीक है, क्योंकि ब्रेकआउट्स इंट्राडे में शॉर्टर टाइम फ्रेम पे फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। स्टिल कई बार अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं तो मैं ट्रेड्स ब्रेकआउट पे भी लेता हूँ। मैं बेसिकली तीनों स्टाइल की ट्रेडिंग करता हूँ, बट मेरा जो मेन स्टाइल है वो है ट्रेंड राइडिंग और ट्रेडिंग द सेम स्टॉक्स एवरी डे बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन, ठीक है। सो अपना स्टाइल चूज करो, अपनी शॉर्ट लिस्ट किस तरह करने है उसका स्टाइल चूज करो, और डेली ट्राई करो कि कुछ ही स्टॉक्स को आप डेली ऑब्जर्व करो, उससे आपको उस स्टॉक का एक एक नब्ज पकड़ लोगे कि अब ये क्या करने वाला है। इससे आपको एक एज मिलेगा ट्रेडिंग में। वट आफ्टर ऑल वट वी नीड इन ट्रेडिंग, एन एज। हमें एक एज चाहिए होता है जो सिर्फ हमारे पास हो, किसी और के पास ना हो, ठीक है। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स, आई विल टेक योर लीव नाउ। कोई भी क्वेश्चंस हो कमेंट में करो, वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो गया है और मैंने इस तरह की चीज़ें एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल होता है, मैंने फिर भी मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया। आई एम नॉट अ वेरी गुड टीचर और वेरी गुड ट्रेनर, ठीक है। सो जो भी क्वेश्चंस हो या क्वेरीज हो या तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आप यहाँ भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है। डू लीव अ लाइक, प्लीज शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू, टेक केयर, बाय। So now